The planes, page number 50. So, this mental conscious human soul on the fifth plane experiences the first state of mental world with the mental body or the mind and the gain consciousness of the first state of mind. Here, the soul is capable of controlling the first state of mind, that is, thought of the gross conscious and the subtle conscious, human souls, but is now totally capable of performing any miracles because of this total unconsciousness of this infinite energy of the subtle world and its powers. However, as this mental conscious human soul controls the first state of mind of the subtle conscious human souls, the incitement in the subtle conscious human soul to perform miracle is checked, controlled, or aggravated according to the desire and will of the mind of the mental conscious human soul, who is capable of creating and controlling thoughts of uh, other minds and himself stable and can never again slide down to any lower level of consciousness. तो यहाँ फिर से वही बात जो है उसको बाबा ने रेखांकित किया है कि जो फिफ्थ प्लेन की जो पांचवी भूमिका की स्थिति में आत्मा जब आती है तब वो जो सूक्ष्म भूमिका और स्थूल भूमिका और उसमें जो विचरण कर रही हैं आत्माएं उनकी स्टेट ऑफ माइंड पर कंट्रोल कर सकती हैं। उनकी जो अवस्था स्वयं की अवस्था है वो कभी उससे फिर नीचे नहीं जाती हैं, वो उसी अवस्था में रहती हैं और वहाँ से वो जो है इनकी एनर्जी पे और इनकी अवस्था पर कंट्रोल कर सकती हैं। और इसके समय ये ऐसी अवस्था में भी पहुंच जाती हैं यहाँ जहाँ पे ये मिराकल्स परफॉर्म करने लगती हैं। However, as the mental conscious human soul controls the first state of mind of the subtle conscious human soul, the incitement of the subtle conscious human soul to perform miracle is checked, controlled, or aggravated according to the desire and will of the mind of mental conscious human soul. तो उसके विल और डिज़ायर के हिसाब से जो मिराकल्स हैं वो परफॉर्म होने लगते हैं। वो इज़ केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग थॉट्स ऑफ अदर माइंड्स, जो केपेबल है और क्रिएट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है दूसरे लोगों के मस्तिष्क पे, एंड हिमसेल्फ स्टेबल एंड कैन नेवर अगेन स्लाइड डाउन टू एनी लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब वो जो खुद की जो स्थिति है वो स्टेबल रहती है, वो स्थित उस अवस्था में रहता है, लेकिन उसके अंदर ये पावर आ जाता है कि वो जो लोअर एनर्जीज में हैं उनके माइंड पर वो कंट्रोल कर सके, उन्हें वो विचार भी देता है। Gradually, as the involution of the consciousness of the mental conscious human soul progresses deeper and deeper, he experiences mastery over the second state of mind, that is feelings. तो जैसे ही वो इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की जो भूमिका है और उसमें यौगिकता जिसे हम कहते हैं, उस मार्ग पे जैसे ही वो प्रशस्त होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और उसमें गहराई में जाता है, उस ज्ञान को समझने लगता है, तो वो फिर सेकंड स्टेट ऑफ माइंड, जो दूसरी अवस्था या जिसको छठवीं भूमिका हम कहते हैं, वो उस अवस्था में चला जाता है और वो जो है वो फीलिंग्स का यानी भावनाओं वाला जो है पूरा विश्व है। And he now become fully conscious of the mind and mental body and conscious of the whole and mental body of the sixth plane. अब छठवीं जो भूमिका है उसको लेकर पूरी तरह से जो है वो उसका अनुभव हो गया है। This experience of seeing God face to face, seeing God everywhere and everything. तो अब ये अनुभव जो है वो प्रभु गॉड को हर जगह और हर चीज़ में देखने का अनुभव होता है। Right from the first plane up through the sixth plane, the
involution of consciousness progressed gradually and steadily as the consciousness of the soul had less and less frequent experiences of the multifarious and diverse opposite impressions, which grew fainter and fainter. तो अब ये जो है जो चैतन्य ये जो अवस्था है प्लेन जो अलग अलग पहले प्लेन से जो छठवें प्लेन भूमिका की जो पहली भूमिका जो थी भूमिका और वहाँ से जो छठवीं भूमिका है वहाँ तक की जो पूरी यात्रा है वो बड़ी ग्रेजुअल होती है, वो अपनी एक समय लेकर होती है, स्टडीली होती है। मतलब वो अपना एक जब तक वो पहली अवस्था को पूरा नहीं कर लेता वो दूसरी पे नहीं जाता, दूसरी जब अवस्था पूरी हो जाती है उसका ज्ञान हो जाता है फिर तीसरी पे, इस तरह से ये जो पूरी यात्रा चलती है। Consciousness of the level has less and less frequent experience of multifarious and diverse opposite impressions which grew fainter and fainter. तो जो भी जिसको हम कहते हैं कि ऐसे अनुभव जो कि विरोधाभास होते हैं और वो सारे जो अनुभव होते हैं जो अलग अलग होते हैं जिनका कि कोई औचित्य नहीं होता है, वो धीरे 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 जो जिसको बोलते हैं कट डाउन वाली बात होती है कि जो भी अननेसेसरी है जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिन अनुभवों को हमें लेना नहीं है, वो अपने आप जो सोल है होती है उसको डिस्कनेक्ट करती चली जाती है, उसको छोड़ती हुई चली जाती है और वो एक भूमिका से दूसरी भूमिका में, मतलब जब वो ग्रॉस वर्ल्ड में होती है तब उसको चॉप ऑफ करती है, वो उसको सारे जो उसके जो हैं उसको फेंटर एंड फेंटर उसको विलीन करती है अपने सारे संस्कारों को और उससे धीरे 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 आगे प्रगति करती है, आगे प्रोग्रेस करती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। और ये बड़ी तयशुदा है सारी चीज़ें। मतलब ये जो है ये यात्रा जो है ये बहुत ही यात्री को खुद ही चल के इस पे इसको पूरा करना पड़ता है। Therefore, while the involution of the soul's consciousness was in progress, the divine opposite impressions become gradually scarcer and fainter until the involved consciousness of the soul on the sixth plane is fully conscious of the mental body and experience the mental world in fully with practically no impressions at all except a faint last trace of residual impressions of opposites. That is, the involved consciousness fully identifies with mind and the soul tends to realize that he is mind, and this soul as mind, इसमें M बड़ा लिखा है हर जगह, has a last and the total impression that he sees God face to face in everywhere, but he cannot see himself in God. तो ये एक बहुत चरम अवस्था है, ये एक अद्भुत अवस्था है जहाँ पर जिस भूमिका में पहुँच गए हैं और वहाँ पर जाके जो आत्मा है, जो सोल है, और ये सोल हम फिर वही बात कई बार मैंने याद दिलाई है और फिर याद दिलाना चाहूँगी कि जो ओवर सोल में सारी आत्माएं स्थित हैं, हम उनकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ से जो एक आयोटा जो है और जो लेश मात्र आत्माएं यहाँ पर अनुभव लेने आई हैं, ड्रॉप्स ऑफ सोल जिसको कहते हैं, या समुद्र की जो बूंदें हैं वो जो ले रही हैं हम, उन आत्मा जब सोल शब्द यहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है उस संदर्भ में हो रहा है। तो ये जो है ये फुल्ली कॉन्शियस हो चुकी, कॉन्शियसनेस पूरी इसकी इवॉल्व हो चुकी है और इस सोल को जो है रियलाइज़ हुआ है कि पर अभी भी ये जो है कि मैं माइंड हूँ। तो अभी भी जो उसके अनुभव का स्तर है वो मैं उसमें एम जो है या मैं अपना जो है वो अभी भी है, मैं का भान है उसमें, आई का भान जिसको हम कहते हैं कि वो अभी भान गया नहीं है, इसलिए उसको हर जगह जो है ही सीज गॉड फेस टू फेस, उसको हर जगह अब गॉड दिखने लगे हैं, प्रभु दिखने लगे हैं, बट ही कैन नॉट सी हिमसेल्फ एज गॉड।
पर अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि उसको ये भान हो गया कि मैं स्वयं ही प्रभु हूँ, मैं स्वयं ही गॉड हूँ. दिस मेंटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल ऑफ द सिक्स प्लेन, तो ये जो मनुष्य की आत्मा है जो छठवीं भूमिका पर है, वो सारे इम्प्रेशन से, सारे संस्कारों से जो है परे हो चुकी है. एंड द ओनली कॉन्शियस ऑफ माइंड, अब सिर्फ वो जो माइंड से वो जो काम करने का उसका जो वर्षों का अनुभव है वो केवल रह गया है. नाउ इज कन्फ्रंटेड विथ गॉड फेस टू फेस. अब बिल्कुल वो सामने आके खड़ी हो गई है. And sees God in everything but does not see himself in God, because being still conscious of mind he takes himself as mind. तो अब ये हो गया है कि वो बिल्कुल गॉड के सामने खड़ी हुई है, लेकिन अभी भी कॉन्शियस है, माइंड को लेके अभी वो जो है गए नहीं है. इसलिए वो अपने आप को जो है माइंड और गॉड दोनों में जो है वो पूरा आया नहीं है. अभी भी भाव है वो अद्वैत का, और जो भाव कहते हैं. This mental conscious human soul associates himself with mind and is conscious of himself as mind. तो ये जो है अपने आप को अभी भी एसोसिएट करती है, अभी भी अपने आप को जो है माइंड के साथ में जोड़ती है, जिसको कि हम कारण शरीर मानस वाली जो बात होती है कि उसके साथ में भी वो अभी भी और जो है प्रभु को सामने देखती है, लेकिन वो स्वयं प्रभु है ये नहीं समझ पाती. This mental conscious human soul associates himself with mind and is conscious of himself as mind and experience himself as still something other than God. तो ये बात हुई है. This mental conscious human soul on the sixth plane actually sees God face to face more vividly and intensively than the gross or subtle conscious human soul sees object of the gross and subtle world. तो वो जो स्थूल शरीर वाले जो लोग होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर वाले जो आत्माएं होती हैं, वो जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, जिस तरह से चीज़ों को देखती हैं, जिस तरह से हमें जो भी सामने है, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से उसे गॉड, उसे प्रभु दिखाई देते हैं. फेस टू फेस इस भूमिका में दिखाई देते हैं. At this stage, the consciousness of the soul, which had experienced diverse, innumerable, and opposite impressions, तो एट दिस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस का जो चैतन्य की ये अवस्था है आत्मा की, जिसने अनुभव किया है डाइवर्स. डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह के, इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, सैकड़ों, अनेकों, एंड अपोजिट इम्प्रेशंस, विपरीत मतलब राजा और रंक वाली, या इस तरह के गरीब और अमीर, और इस तरह के जो विपरीत इम्प्रेशन संस्कार जो होते हैं. नाउ एक्सपीरियंस द लास्ट ट्रेस ऑफ डुअल इम्प्रेशन ऑफ द अपोजिट. तो उसको जो वर्षों बरस की जो आदत है विपरीत संस्कार देखने की, ड्युअलिटी में रहने की, अद्वैत वाले उसमें और द्वैत वाला जो है भान नहीं होने वाली स्थिति में जो रहने की आदत है, उसकी वजह से उसे वो प्रभु को देख रहा है हर जगह. हर जगह प्रभु दिख रहे हैं, हर जगह प्रभु दिख रहे हैं, पर वो स्वयं प्रभु है वाली स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा. This mental conscious human soul on the sixth plane is still conscious of duality, identifying himself as mind and differentiating himself from God. तो differentiate अभी भी जो है वो प्रभु के साथ कर रहा है. इस अवस्था तक, छठवीं अवस्था तक वो बहुत पहुंच चुका है, उसने बहुत प्रगति कर ली है. और इसके बाद जो है वो सेवेंथ प्लेन. तो अब हम जो है सारा समझ चुके हैं. ग्रॉस बॉडी,
जो है, जो भूमिका में जाती है, वो ग्रॉस वर्ल्ड से अपने सारे रिश्ते स्नैप करती है। फिर उसके बाद वो स्थूल जो स्फेयर है, वो स्थूल ग्रह जिसको बोलते हैं, या स्थूल जो एक आकाश है जिसमें 3 भूमिकाएं होती हैं, तो वो 3 भूमिकाओं को पार करके वो चौथी भूमिका जो कि स्थूल विश्व और स्थूल और मेंटल के बीच की जो होती है चौथी भूमिका, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके बाद मेंटल वर्ल्ड जिसको हम मानस कहते हैं, वेदों में मानस शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके लिए कारण शरीर भी बोलते हैं। और तो वो बाबा ने कारण शरीर नाम दिया है, मानस भी नाम दिया है। उसमें 2 भूमिकाएं होती हैं। तो एक पहली जो भूमिका होती है उसमें उसका माइंड जो होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जो है वो सारा जो है कंट्रोल भी कर सकता है ग्रॉस बॉडी के लोगों को, उनके विचारों को, उनको नहीं कंट्रोल करता है, उनके विचारों को कंट्रोल कर सकता है। और जो स्थूल विश्व के लोग हैं उनको भी वो अपना प्रोजेक्ट कर सकता है विचार, और मिराकल्स परफॉर्म करने लगता है। और इसी भूमिका की जो दूसरी फैकल्टी होती है जो उससे बेहतर होती है कि वो इन सारे विचारों को भी त्याग तज के वो और आगे बढ़ जाता है। तब तक उसकी फीलिंग वाला जो हिस्सा होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, और वो छठवीं भूमिका में जाके उसको भी पार कर लेता है और उसको प्रभु दिखने लग जाते हैं हर जगह, हर स्थिति में, हर ऑब्जेक्ट में। हमें जैसे दिखते हैं, ये सामान दिखाई देता है, वो उसकी से भी ज़्यादा इंटेंस अवस्था में है, उसको प्रभु हर जगह दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन चूँकि वो एक युगों युगों की उसकी लंबी यात्रा विरोधाभास की रही है, उसने सारा जो जाना है वो डुअल की वजह से ही जाना है, अद्वैत की वजह से और उसकी वजह से ही जाना है। इसलिए वो अपने में और गॉड में फ़र्क कर रहा है, वो प्रभु को देख रहा है, अभी भी उस अवस्था में वो है। अब इसके बाद जो इससे भी इवॉल्व होने की जो एक बहुत ही बेहतर स्थिति आती है वो है 7वां प्लेन, 7वीं भूमिका। वो अब आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये पेज नंबर 51 है गॉड स्पीक्स में। द एक्सपीरियंस ऑफ डुअलिटी lingers on and on until the final involution of consciousness of the mental conscious human soul leads to the soul to disassociate itself from the mind. तो ये लिंगर ऑन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जब तक उस अवस्था पर आत्मा आ जाती है जहाँ जाके वो डिसएसोसिएट करने लगती है इस डुअल अवस्था से भी, उसको भी छोड़ देती है। और with the mind, the consciousness of the mind has objectifying God and make the soul associate itself with its own self. सेल्फ में भी एस बड़ा है यहाँ पर, द सोल और आत्मा। तो अब ये जो है डिसएसोसिएट करने लगती है उस डुअल अवस्था को भी, माइंड अवस्था को भी अपनी, और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहाँ के उसको प्रभु जो है मेक्स द सोल एसोसिएट इटसेल्फ विथ इट्स ओन सेल्फ, एसोसिएट इटसेल्फ विथ इट्स ओन सेल्फ। तो आत्मा और परमात्मा जो हैं वो एक हो जाती हैं, ये उस अवस्था में आ जाते हैं। Thus the consciousness of the soul is now said to experience the last and consciousness of the 7th plane. तो अब जो है आत्मा जो है चैतन्य के 7वीं भूमिका पर पहुंच चुकी है। Here on the 7th plane, the self-conscious human soul is conscious of himself as God and experience infinite power, infinite knowledge and infinite bliss. तो अब जो 7वीं अवस्था पे, 7वीं भूमिका पर जो पहुंच जाती है, तो वो अपने आप को, जो आत्मा है, अपने आप को परमात्मा की अवस्था में पहुंचा देती है। और इस 7th प्लेन में सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन सोल is conscious of himself as God and experience infinite power, मतलब असीमित जो है शक्ति, और infinite knowledge जो है
अंग्रेज़ी वाला जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हिंदी में जब हम नॉलेज कहते हैं तो वो ज्ञान जो होता है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है जो कहीं लिखा नहीं गया है, वो केवल जो है तो ये उसको वो जो है वो सारा भान जो है वो सारा ज्ञान उसके साथ में हो जाता है। और इन्फिनिट ब्लिस, जो आनंद का अनुभव जो है उसको वो भी साथ में समझ स्वाभाविक है कि वो होगा ही। फॉर द मेंटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल टू क्रॉस द सिक्स प्लेन एंड एक्सपीरियंस द सेवंथ प्लेन बाय हिज ओन एफर्ट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मेंटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल जो है वो छठवीं भूमिका से सातवीं भूमिका से तक स्वयं अपने आप पहुँच जाए, ये बिल्कुल ही असंभव बात है, ये संभव नहीं है। At this, it is quite impossible. At this stage, the grace of perfect master is absolutely essential to help the mental conscious human soul to disassociate himself from the consciousness of the mind and make him realize his unity with infinite state, to experience infinite bliss consciously, and to realize that he was essentially in bliss. तो यहाँ जो है सद्गुरु की भूमिका का बहुत महत्व है, और सद्गुरु ही उससे इस अवस्था का भान करवाते हैं कि तुम माइंड नहीं हो, तुम का जो है ऑब्जर्व ये जो है तुम देख नहीं रहे हो इसको, तुम हो, तुम स्वयं ये हो। तो ये जो पूरा एक डाइवर्ट होता है, जो पूरा शिफ्ट आता है, वो बगैर सद्गुरु की मदद के नहीं हो सकता। तो यहाँ बाबा ने जहाँ जहाँ जिक्र किया है वो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि ग्रॉस और जो सटल वर्ल्ड, जो 3 सटल वर्ल्ड हैं, उसमें आत्मा अपनी मेहनत से और अपनी कोशिशों से वहाँ विचरण कर सकती है, और वो सारे जो अलग अलग जो हैं उसमें अपना वो उतना जो है उतनी समझ उसमें वो उतना अनुभव ले सकती है। लेकिन जैसे ही वो चौथे प्लेन पे आती है, चौथी भूमिका पे आती है, वहाँ से सद्गुरु का काम जो है मतलब सद्गुरु की मदद के बगैर ही, यहाँ भी सद्गुरु की तो आवश्यकता होती ही, सद्गुरु की तो जीवन के हर क्षण में आवश्यकता होती है, लेकिन चौथी भूमिका जो ऐसी भूमिका है वो ऐसा मतलब जगह पहुंच जाते हैं कि जहाँ की सद्गुरु की उंगली पकड़ के ही आप प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो आपको जो है गाइड हैं आपके, जो आपको आगे ले जाते हैं, जो आपको बढ़ाते हैं, जो आपको भान कराते हैं, और वो चाहते हैं तो चौथी भूमिका से सीधी छठवीं भूमिका पे ले जाते हैं कुछ लोगों को, या पाँचवीं से छठवीं भूमिका पे जा सकते हैं। तो ये सारा काम जो है, और यहाँ जो सातवीं भूमिका की बात हो रही है कि आपको गॉड, आपको अभी तक गॉड दिख रहे थे और अब उन्होंने जो है आपको पूरा भान करा दिया है कि आप स्वयं आत्मा ही परमात्मा है, आप वही हैं, आप उसी का अंश हैं, और उसी में समाहित है। जो बुलबुला है वो फूट गया है। For the mental conscious human soul to cross the sixth plane and experience the seventh plane by his own effort is quite impossible. At the stage of grace of perfect master is absolutely essential to help the mental conscious human soul to disassociate himself from the consciousness of the mind, to make him realize his unity with the infinite state, to experience infinite bliss consciously, and to realize that Atma is essentially in bliss. मतलब वो जो आत्मा का बुलबुला है वो उस समुंदर में ही है वाली जो बात की समझ आना. So it is that the self-conscious human soul of the seventh plane is now fully conscious of the self as infinite and eternal, and is now also conscious of the source of energy and mind, which were nothing but the shadowy aspect of his own infinite power and infinite knowledge. अब इसकी जो अपनी इन्फिनिट नॉलेज है, इसकी अपनी जो इन्फिनिट पावर है, ये इसका जो भान, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो इसकी कॉन्शियसनेस ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो जो है एक बहुत बड़ी अवस्था में पहुंच गई है.
और वहाँ से उसको जो भान हो रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, वो अकल्पनीय हैं। तो उसका ग्लिम्सेस हैं, उनके लिए एक एक लाइनें, एक एक पंक्तियाँ इस्तेमाल की हैं मेहर बाबा ने। जैसे बोलते हैं थोड़ा लिखा बहुत समझना वाली बात है यहाँ पे। तो ये एक एक प्लेन्स को अगर हम समझें और जानने की कोशिश करें कि क्या होता है, ग्रॉस बॉडी किस तरह की होती हैं, ग्रॉस आत्माएं किस तरह की होती हैं, वो कौन लोग हैं जो ग्रॉस वर्ल्ड में आते हैं, वो कौन लोग हैं जो स्थूल वर्ल्ड में आते हैं, वो कौन लोग हैं जो मेंटल वर्ल्ड में बैठ के सारा चला रहे हैं सारा, और वो कौन है जो उससे भी अधिक अवस्था में हैं। तो वो जो है ये जो सारी यात्रा है आपको धीरे 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 समझने आनी पड़ेगी। तो ये इसलिए जो है गॉड स्पीक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो ज्ञान है आपको नहीं मिलेगा कहीं और से। ये ज्ञान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ बाबा लवर भी ज़रूरी है, इवन अदरवाइज भी ज़रूरी है। आज जो हालत है दुनिया की, आपको अपनी स्थिति समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए अवतार स्वयं आके अगर आपको बतला रहे हैं कि ये केवल ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, बहुत कुछ है, और ये दुनिया है, ये वर्ल्ड है जिसको हम इग्नोर ही किए हुए हैं पूरा पूरा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो एक है कि एक दरवाज़ा बंद है तो हम क्यों देखें उस दरवाजे के अंदर, ये ना करें, जानने समझे कम से कम। The self-conscious human soul, which is now self-realized or God-realized, not only experience infinite power, infinite knowledge and bliss, but simultaneously radiant with, sometimes in certain cases with such conscious human soul, are made use of this infinite power, knowledge and bliss directly and consciously for the emancipation of other souls from their impressions and their respective association from the gross, subtle and mental forms of the world. इसमें कोई बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी सातवें उसको पढ़ने के लिए इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसके बारे में इन्होंने सारा बाबा ने है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। It is travail to gain self-consciousness of the individual internal Atma, soul, unconscious of his infinite state of Paramatma, gathered and experience innumerable diverse impressions, and all the while associated itself with the infinite and ephemeral existence, unfurling the gross, subtle, and mental world while evolving gross consciousness of the gross world, and while evolving consciousness of the subtle and mental planes of the subtle and mental worlds. Involution of consciousness of the Atma culminated by the grace of perfect master. यहाँ जाके जो है कल्मिनेशन होता है इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, आत्मा का जो परम चरम अवस्था है, ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर, सदगुरु की कृपा से। Let the Atma of self-realization of his infinite state in Paramatma. तो let the Atma to self-realization of its infinite state in Paramatma. तो आत्मा की जो इन्फिनिट स्टेट है वो परमात्मा है। उसकी जो असीमित, अभी तक तो सीमित फॉर्म में जो है, अब वो असीमित फॉर्म की जो अवस्था है उसका रियलाइजेशन जो है वो सदगुरु करवाते हैं। Thus is that then the consciousness of the Atma gained self-consciousness and experience infinite power, knowledge and bliss. The Atma realized that it exists eternally, that all through the travail of gained self-consciousness, the impression, experience and association of the gross, subtle and mental bodies and worlds were nothing but vacant dreams. तो ये उसको जो स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, और जो ये तीनों है, ग्रॉस है, स्थूल शरीर है, और जो मानस है, वो सारा जो है दिवा स्वप्न है, उसका बिल्कुल एहसास जो है उसको बिल्कुल दिखाई देने लग जाता है वहाँ पे। एंड दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। वो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं रह जाती, वो केवल सोचने वाली बात नहीं रह जाती, फिर उसको वो दिखने लगता है कि ये सब स्वप्न है। And that the identification with gross body
creatures and humans being and all the experiences of the three worlds and the six planes with all their paraphernalia had their relative existence sustained the maintained as long as the consciousness of the Atma was immature. Maturity was only gained in the seventh plane with consciousness fully evolved. मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप सटल प्लेन्स में आ जाते हैं तो आप बहुत अनुभव नहीं कर रहे हैं. नहीं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप तो मिराकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं. वो करते 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 जब सातवीं अवस्था में आप पहुंचते हैं तो दरअसल मेच्योरिटी जो है, वो परिपक्वता जिसको हम कहते हैं, वो सातवीं भूमिका में ही आती है, जहाँ आपको ये सब जो है इमटेरियल और बहुत छोटा और जिसका कोई अर्थ नहीं है और वास्तविक नहीं है, वो सारे भान आपको हो जाते हैं और आप सचमुच क्या हैं और किस अवस्था में हैं और आप क्या परमात्मा के साथ में जो आपको सच जो आपको जो पावर का और आपको जो ज्ञान का और आपको जो आनंद का अनुभव हो रहा है, वो बिल्कुल ही जो है सातवीं अवस्था में जाके सद्गुरु की कृपा से वो आपको प्राप्त होता है, वो समझ में आ जाता है. तो फुल्ली कॉन्शियस ऑफ गॉड रियलाइजेशन की जो एक परम अवस्था है, साक्षात्कार, परम साक्षात्कार वाली अवस्था है. It is only after the final inhalation of the mind and the wearing out of the curtain of mental impression that consciousness can function in full freedom from all impressional bindings. पूरी फ्रीडम इसको जो है जो इम्प्रेशन, जो संस्कार उसने जो डाले हुए थे अपने, उस पे से उसको जो है उसकी जो बाइंडिंग है या जो बंधन कारक थे, वो सबसे उसको यहाँ मुक्ति मिल चुकी है. दिस मीन्स क्रॉसिंग द डीप ओबीसी विच सेपरेट्स द सिक्स प्लेन फ्रॉम द सेवेंथ प्लेन. तो ये है कि उसने जो है समुद्र का वो पार कर लिया है पूरा, और छठवीं अवस्था और सातवीं अवस्था से वो जो है अपरंपार वाली जो स्थिति पे है वो पहुंच चुका है. द सेवेंथ प्लेन, ये सारा सब कुछ बहुत बहुत डीप है, ये बहुत बहुत समय लेने वाला है. एक एक पंक्ति में है बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी में मैं केवल अनुवाद इसका कर रही हूँ, पर ये जो हैं, ये एक एक प्लेन जो हैं, ये कई कई दिन ले सकते हैं. तो मेरा उद्देश्य केवल यही है कि गॉड स्पीक्स का जो लोग अंग्रेज़ी वाली पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कम से कम ये समझें कि उसको पढ़ना कितना ज़रूरी है. चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ें ज़रूर. तो ये जो है, ये कितना, आप क्या सोच सकते हैं, आप जीवन में ये पढ़े बगैर आप जाना चाहते हैं क्या? इसे पढ़ें ज़रूर, ये निवेदन है. And only after the final inhalation of the mind and the wearing out of the curtain of mental impression that the consciousness can fully and function in full freedom from the impressional bindings. This means crossing the deep odyssey which separates the sixth planes from the seventh plane. The seventh plane is the formless abode of the highest of the high. तो ये जो है हाईएस्ट ऑफ द हाई, जो हमें कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भी कहते हैं, सर्वोत्तम भी कह सकते हैं. सर्वोत्तम जो है उनका जो अबोड, मतलब उनका जो स्थान है, उनका जो निवास है, वो वहाँ पर है. द मोस्ट हाई ऑन द इन्फिनिट गॉड एज ट्रूथ. अब नीचे कुछ फुट नोट्स भी हैं इसमें. कैन बी रियलाइज only by transcending the entire realm of imagination. Only on the seventh plane does the soul fulfill the initial urge for self-knowledge by experiencing its own self as identical with the unchanging, external, indivisible and formless.
यानी यहाँ इस अवस्था में जाने के बाद वो अपने आप को अविभाज्य निराकार और अनंत, अमर, अनंतहीन, ये जो सारी अवस्थाएं हैं उसको पा लेती है. Only on the seventh plane does the soul fulfill the initial urge of self-knowledge by experiencing its own self as identical with the unchanging, eternal, indivisible and formless oversoul. तो जो परमात्मा है उसकी जो अवस्था है बिल्कुल वही और वैसी ही अविभाज्य, निराकार, अनंत, अनंतहीन अवस्था उसको वो प्राप्त कर लेती है. उसका जो है उसको भान हो जाता है या वो स्वयं वो हो जाती है. Only on the seventh plane does the soul fulfill the initial urge of self knowledge. तो उसका जो पहली जो सेल्फ नॉलेज वाला जो बात है कि वो जो ज्ञान है जिसको हम स्पिरिचुअल, आध्यात्म का ज्ञान जिसको कहते हैं, वो जो है कि हु एम आई वाली जो है वो पूरी यात्रा का यहाँ कहीं कल्मिनेशन, यहाँ जाके कल्मिनेशन होता है. इटर्नल, इंडिविजिबल एंड फॉर्मलेस ओवर सोल विथ इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट रियलिटी. सत्य क्या है? इन्फिनिट पावर एंड इन्फिनिट ब्लिस. तो ये जो है 7 भूमिकाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण 5वां पार्ट गॉड स्पीक्स का है. और इसमें अलग अलग भूमिकाओं, अलग अलग स्थितियों में कैसे जो है विचरण करती हैं और कैसे 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 मार्ग भी बताएं. मेहर बाबा ने आपको ये भी समझाया है कि आप कैसे 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 एक एक सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं. जो बड़ी सुंदर बात है कि ये जो स्फेयर्स हैं, स्फेयर बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द यहाँ बनता है कि अपने अपने जो आकाश हैं उसमें ये कैसे विचरण करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं. और इसलिए कोई भी अननेसेसरी अनुभव, कोई भी अननेसेसरी संस्कार, कोई भी अननेसेसरी रिलेशनशिप जिससे आपका कोई कुछ सीखना ही नहीं है, उसको तजते चले जाते हैं, ग्रॉस बॉडी से आगे बढ़ते चले जाते हैं. और उसके बाद में जाके आपको जो है आपकी ग्रोथ होती है, आप इवॉल्व होते हैं. सो देयर इज़ अ वे. एक यात्रा है, एक दुनिया है जो हम समझते हैं कि यही हम जो है, नहीं, इससे भी बहुत आगे दुनिया है. अब यहाँ कुछ फुटनोट्स दिए थे. उसमें एक असगर का है जो 100 times I felt that I held your garment firmly in my hands. When I opened my eye, I was amazed to discover it was my own garment that I was holding. तो ये है कि मैं हमेशा ये समझता था कि अरे मैं तो प्रभु का हाथ पकड़ के चला जा रहा हूँ और उनका दामन पकड़ के चला जा रहा हूँ. और उनके हाथ को फर्मली मैंने पकड़ा हुआ है. और पर जब मेरी आँख खुली 7वें भूमिका पे, तो मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मैं अपना ही दामन पकड़ा हूँ और ये तो मैं ही हूँ. द गॉड रियलाइज मैन is the Almighty plus knowledge and consciousness. He is in the perfect wakeful state. He is knowledge. Knower and the knower, knower and the known. He is love, lover and the beloved. He knows that in every Jivatma, that the everyone is in him, and the God realized man knows that he is and will be, and the end of all existence. ये किस संदर्भ में कहा गया है? मुझे चश्मे की आवश्यकता पड़ गई ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं फुटनोट जो है मैं अलग से पढ़ रही हूँ. मुझे वो छोटे जो पॉइंट्स वो बने हुए थे वो निशान दिखाई नहीं दिए. एंड ही ऑलवेज वॉज एंड विल रिमेन. अब भगवान न करे मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़े, सब दिखा दे ऊपर वाला बिना चश्मे के.
the God realized man knows that he is and be all and end of all existence, and he always was and will remain in the same one infinite ocean of truth. But the ordinary man does not know whence he come and whither he will go. तो ये जो क्लूलेस जर्नी, चलो यहाँ से यहाँ ये करते हैं, यहाँ से वहाँ वो करते हैं, वहाँ से वो, फिर जाना कहाँ है, आना कहाँ है, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं जो सारा जीवन का हमारा निकल जाता है वो जो है ग्रॉस वर्ल्ड वाले अनुभव से जो है वो परे होने वाली और गॉड रियलाइजेशन वाली और ऑलमाइटी वाली नॉलेज वाली अवस्था में हम पहुँचे. द रीडर इज़ रेफर टू द फरीउद्दीन अतर्स Mantiq ul-Tiyar, a Sufi allegory known as the Conference of the Birds. Conference of the Birds हमने सबने पढ़ा हुआ है और हमने सबने मेहराबाद में भी ये नाटक भी देखा था. हिबा खान लेकर आई थी कि बहुत ही खूबसूरत उसमें अलग उसमें जो है बर्ड्स गॉड को पाने के लिए बढ़ती चली जाती हैं और वो उसी तरह से जो है इनडायरेक्ट वे में है वो कि वो कहाँ कहाँ जाके अटकती हैं, किन किन रास्तों पे अटकती हैं, वो बड़ा खूबसूरती से उसमें दिया हुआ है. फॉर अ डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी थ्रू द प्लेन्स, बड़ा खूबसूरत दिया है, पर ये सूफिज़म वाले उसमें आता है. तो ये कुछ पॉइंटर्स इसमें नीचे दिए हुए थे जो मुझे साथ में पढ़ना चाहिए था लेकिन रह गया. ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है द प्लेन्स. मतलब अगर आपने मेहराबाद आना शुरू किया है और आपने गॉड स्पीक्स पुस्तक खरीद ली है तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय तक आप जो है अपना समय इसमें बिता सकते हैं और इससे सीख बहुत सकते हैं. ये सीखना मतलब लर्निंग वैसी वाली लर्निंग नहीं है, ये अपने आप ही आपको जो है जीवन के अनुभव और जीवन में कैसे चलना है वो सारी जो यात्रा है उसका भान कराती है. सो वी हैव फिनिश्ड दिस फिफ्थ पार्ट ऑफ गॉड स्पीक्स द प्लेन्स. सारी जो भूमिकाएं हैं और जो प्लेन्स हैं, जो वर्ल्ड्स हैं, उसकी बात हुई है. और इसके बाद हम जाएंगे पार्ट 6 पे जो कि है समरी ऑफ स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस. एक संक्षिप्त जो है वो दिव्य चैतन्य के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब दिव्य चैतन्य के बारे में संक्षिप्त रूप में दिया गया है. तो वो हम अगले भाग में सुनेंगे. धन्यवाद.